Hello, welcome back once again in Principle of Electronic Communication subject. So, in the last lecture, we have completed till the terms related with skywave propagation and also the terms related with space wave propagation. So, the terms related with the space wave propagation, we have seen the LOS path, then optical horizon and radio horizon, shadow zones, ghost interference. So, this all the terms we have covered in our last lecture. Now today we are going to cover some more topics in wave propagation chapter. Now the new topic, it is also related with the space wave propagation only. This is the term which is known as multi-path space wave propagation. So now we have to see what is multi-path space wave propagation. So at the time of fading topic, I have told you, explain you, or when I was explaining you the ghost interference topic, for space wave propagation, the rays must be travel in a straight line. The waves must be travel in a straight line and must be follow a direct ray. But what happen when the waves are emitted by the transmitting antenna? So some of the waves may get reflected from the earth surface, and this reflected ray will also be reached to the receiving antenna. So for space wave propagation, the wave must be travel in a straight line, must be travel in a direct race from transmitting antenna to receiving antenna. But what happen in multipath space wave propagation? Some of the waves may be get reflected from this earth surface and also reach the receiving antenna. So what will happen at the receiving antenna? The receiver signal strength is going to be vary, and it is the vector sum of the two waves. First one is direct rays and the second one is reflected waves. So whatever the signal you are going to receive at the receiving antenna, it will be the vector sum of the two waves, the direct waves as well as the reflected waves. तो बात समझ में आ रही है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? हम लोग का टॉपिक है अभी मल्टीपाथ स्पेस वेव प्रोपोगेशन। तो मल्टीपाथ स्पेस वेव प्रोपोगेशन में क्या होगा, जैसा कि आपको पता है स्पेस वेव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि जो अपनी इंफॉर्मेशन है, जो अपनी वेव है, वो डायरेक्टली ट्रेवल करती है फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटेना टू रिसीविंग एंटेना। बट कुछ वेव ऐसी भी गूगल भी प्लीज म्यूट, वीपी जो और भी पासवर्ड है वो म्यूट कर ले प्लीज। डोंट डिस्टर्ब इन द लेक्चर। सोहेल के हुए खेली अहमद, म्यूट करो। यस, थैंक यू। तो क्या होता है कि कुछ वेव्स क्या हो सकती है, ये पर्टिकुलर अर्थ सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होकर रिसीविंग एंटेना को पहुंच सकती है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो अपने पास रिसीविंग एंटेना में जो सिग्नल स्ट्रेंथ होगा, जो रिसीव होगा, वो दोनों का वेक्टर सम जैसा होगा, डायरेक्ट रेस का भी होगा और रिफ्लेक्टेड रेस का भी होगा। सो दिस इज द टॉपिक विच इज नोन एज व्हाट मल्टी पाथ, यानी अलग अलग पाथ फॉलो कर रही है रिसीविंग एंटेना में पहुंचने के लिए, अलग अलग पाथ फॉलो हो रहा है। नॉर्मली तो आपका जो वेव होना चाहिए वो डायरेक्टली ही ट्रेवल होना चाहिए, लेकिन कुछ वेव जो है वो क्या हो सकता है, कुछ वेव्स की जो रेज है वो क्या हो सकती है, अर्थ सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होकर पहुंचेगी। तो अलग अलग पाथ फॉलो हो रहा है। सो अलग अलग पाथ फॉलो होने में हम लोग को जो इमेज जो रिसीव होगी, जो हम लोग को जो सिग्नल की स्ट्रेंथ रिसीव होगी, वो दोनों का मिला के जुला के अपनी सिग्नल स्ट्रेंथ रिसीव होगी। तो यहाँ पे वही चीज का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, द सिग्नल रिसीव्ड एट द रिसीविंग एंटेना इज नॉट जस्ट ड्यू टू द डायरेक्ट रे कमिंग फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटेना, बट ऑल्सो ड्यू टू द ग्राउंड रिफ्लेक्टेड रे एज शोन इन द फिगर। तो जैसा कि यहाँ पे आपको मैंने चीज समझाया है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सिग्नल जो रिसीव होगा वो हमेशा डायरेक्ट रेस के थ्रू ही होगा। इट इज ऑल्सो ड्यू टू द रेस विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सर्फेस ऑल्सो, फ्रॉम द ग्राउंड ऑल्सो। Due to different path followed by the wave, the strength received at the receiver antenna is the vector sum of all this strength at the receiver. तो जो सिग्नल की स्ट्रेंथ रिसीव होगी रिसीविंग एंटेना पे, वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा किस किस का, डायरेक्ट रे का भी और रिफ्लेक्टेड रे का भी वेक्टर सम होगा रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ रिसीव एट द रिसीविंग एंटेना। सो दिस रिसेप्शन इज ऑब्जर्व इन टीवी सिग्नल रिसेप्शन। तो ये तरीके का जो रिसेप्शन है वो भी ऑब्जर्व होगा टीवी स्क्रीन पे। जो आप इमेज रिसीव कर रहे हो, जो आप पिक्चर आप रिसीव करोगे टीवी स्क्रीन पे,
तो डायरेक्ट रेस की वजह से भी होगा और किसी वजह से होगा वो रिफ्लेक्टेड रेस की भी वजह से होगा, बिकॉज होल सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, वेक्टर सम हो रहा है दोनों रे का. सो दैट्स व्हाई इट इज द नेम गिवन हियर, multipath space wave propagation. So multipath space wave propagation is nothing but the rays are following different path, multipath. Some rays must be travel directly from transmitting antenna to receiving antenna, or some ray must maybe get reflected from the ground, from the earth surface, and received to the receiving antenna. Now the next is very important topic in this chapter, that is duct propagation. This question may be asked separately for 4 marks. Explain the duct propagation with proper diagram. So what is happening in duct propagation? Why the name is given in ducts? तो ये चीज़ अभी हम लोग को अंडरस्टैंड करना है, ये डक्ट प्रोपोगेशन क्यों क्या गया है. जैसा कि आपको पता है कि हमारी रे जो है वो क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है. कब रिफ्रैक्ट होती है, आपको ये सब चीज़ का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा. जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होने की वजह से रे जो होती है वो क्या होती है, बैंड होती है. बैंड होती है, क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है. तो ये जो डक्ट प्रोपोगेशन में जो प्रिंसिपल लिया गया है, द डक्ट प्रोपोगेशन प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन सुपर रिफ्रैक्शन अकर्स इन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में सुपर रिफ्रैक्शन होता है. वो कैसे होता है वो अभी आपको क्लियर करूंगा. जैसे कि आपको पता है कि वेन एवर द रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो क्या होता है, रे क्या होती है, वो बैंड होती है. ठीक है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जैसे कि आपको पता होगा, आप ये सब नॉर्मली प्रीवियस स्कूलिंग में भी पढ़े होंगे, ये सब चीज़ अंडरस्टैंड किए होंगे. वेन एवर द रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यानी हल्के से भारी की तरफ, जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो मतलब रे क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, बैंड होती है. रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट बेंडिंग ऑफ वेव्स, बेंडिंग ऑफ रे. तो ये चीज़, ये फिनोमिना हम लोग कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, यही सेम फिनोमिना हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एटमॉस्फेयर में भी. एटमॉस्फेयर में कैसे ऑब्जर्व करते हैं, जैसे जैसे हमारी अर्थ सरफेस से हाइट डिस्टेंस बढ़ते जाती है, तो उसी तरीके से एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है, चेंज होते जाता है. यानी whenever you will go above the height from the earth surface, जैसा जैसा आप अर्थ सरफेस की हाइट से ऊपर जाते जाओगे, तो वैसा वैसा क्या होगा, एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी क्या होगा, चेंज होगा. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होगा मतलब कैसा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा. तो ये जो इंक्रीज होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होने की वजह से अब जो वेव्स को तुमने इमिट किए हो अर्थ सरफेस से, तो अबव द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस इन द एटमॉस्फेयर, सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, ये रे क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी. और बैंड होगी, टर्न होगी, टर्न होकर वापस किधर पे आएगी, अर्थ सरफेस पे आएगी. अब दोबारा से क्या होगा, ये अर्थ सरफेस फिर वही वे को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा. रिफ्लेक्ट करेगा तो वापस से ये अर्थ क्या होगी, वापस से अर्थ एटमॉस्फेयर में जाएगी. एटमॉस्फेयर में फिर से वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से वेव्स क्या होगी, वापस से बेंड होगी. तो ये जो सिलसिला है, ये जो है प्रोसेस जो है वो क्या होता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा. कंटिन्यू चलता रहेगा मतलब क्या होगा, वेव्स एटमॉस्फेयर में जाती रहेगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से टर्न होती रहेगी, बैंड होती रहेगी और रिटर्न होगी अर्थ सरफेस को. फिर अर्थ सरफेस उसको वापस से रिफ्लेक्ट करेगा. तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस जो हो रहा है सुपर रिफ्रैक्शन का, super refraction in the atmosphere means what, super refraction in the atmosphere means what, the waves are refracted because of change in refractive index in the atmosphere. तो इन दी एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से वेव्स क्या होगी, रिफ्रैक्ट होती रहेगी, रिफ्रैक्ट होकर और वो वेव्स कहाँ पे आएगी, अर्थ सरफेस. फिर अर्थ सरफेस उसको रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करके क्या करेगा, वापस भेजेगा एटमॉस्फेयर में, वापस ही ऐसा. तो ये जो प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा. तो ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस होने की वजह से जो वेव्स है वो कौन से फॉर्म में दिख रहा है, कौन से फॉर्म में ट्रैप हो गया है, तो इट इज ट्रैप इन द फॉर्म ऑफ डक्ट. डक्ट के फॉर्म में वो ट्रैप हो रहा है. दैट्स व्हाई द नेम इट इज गिवन डक्ट प्रोपोगेशन. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द डक्ट प्रोपोगेशन. डक्ट प्रोपोगेशन होने के बिहाइंड में प्रिंसिपल क्या है, कि प्रिंसिपल यही है, इन द एटमॉस्फेयर एज वी गो अबव द
height surface, as we go above from the height of the earth surface, जैसा जैसा हम लोग अर्थ सरफेस के अबव हाइट में जाते जाएंगे तो एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जाएगा, चेंज हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो जब जो भी वेव्स यहाँ से इमिट होगी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो इन द एटमॉस्फेयर इट विल गेट बैंड, और बैंड होगी, और वो बैंड जो होगा वो सुपर बैंडिंग होगा, सुपर रिफ्रैक्शन होगा। सुपर रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कंप्लीट बैंडिंग ऑफ द वेव्स। एक होता है कि खाली थोड़ा सा बैंड हो जाना तो एटमॉस्फेयर की उसमें रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट बैंडिंग ऑफ वेव्स होगा, जिसको सुपर रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये सुपर रिफ्रैक्शन फिनोमिनन होने की वजह से वेव जो है आप वापस से आपके कहाँ पे आएगी, अर्थ सरफेस पे आएगी, और अर्थ फिर वापस से उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, वापस से भेजेगा एटमॉस्फेयर में। तो ये जो प्रोसेस है, जो कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा, तो इस फॉर्म में होने की वजह से क्या होगा, जो वेव्स है वो कौन से शेप में नजर आएगा, कौन से फॉर्म में नजर आएगा, it is forming the shape of duct, or it is formed in the trap in the form of duct, that's why the name उसको दिया जाता है duct propagation। तो वही चीज इधर पे आपको सेंटेंस में भी लिखी हुई दिखाई देगी मेरे नोट्स में भी, डक्ट प्रोपोगेशन इट इज ड्यू टू द टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन। तो डक्ट प्रोपोगेशन वो क्या है, सबसे पहले तो किसका टाइप है, रिफ्रैक्शन का टाइप है। As we know, the refraction occurs when waves passes from one medium to another medium। जैसा कि आपको सबको पता है कि वेव जो है वो क्या होती है, रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन अकर्स होता है कब, जब आपकी वेव एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रेवल करेगी, मीन्स व्हाट, हैविंग डिफरेंट डेंसिटी। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो एयर एंड वाटर, तो एयर की डेंसिटी अलग है, वाटर की डेंसिटी अलग है, बात समझ में आ रही है। एयर डेंसिटी इज डिफरेंट, वाटर डेंसिटी इज डिफरेंट। तो ये सब चीज़ जो होती है, जब आपकी वेव्स एक डेंसिटी से दूसरी डेंसिटी के मीडियम में ट्रेवल करती है तो वेव्स क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, बेंड होती है। सो इन डक्ट प्रोपोगेशन सुपर रिफ्रैक्शन अकर्स एज द हाइट अबव द ग्राउंड इंक्रीजेस। तो सुपर रिफ्रैक्शन होगा डक्ट प्रोपोगेशन में कब, एज द हाइट अबव द अर्थ अबव द ग्राउंड इंक्रीजेस। तो जैसे जैसा हम लोग ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, हाइट में इंक्रीज होते जाएगा, तो ये सुपर रिफ्रैक्शन क्या होते जाएगा, अकर्स होगा। कंप्लीट बेंडिंग ऑफ वेव्स क्या होगा, अकर्स होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट अबव द ग्राउंड। तो यहाँ पे भी वही सेंटेंस दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन हाइट अबव द ग्राउंड। क्योंकि आप क्या होते जाओगे, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में ट्रैवल करोगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते जाएगा, वो इंक्रीज होते जाएगा। So the refractive index increases with increase in height above the ground. So this phenomena is used for complete banding of waves over the atmosphere। तो ये जो phenomena है refractive index का change होना, ये किस लिए use होता है, for the complete banding of waves occurs in the atmosphere। This wave again is reflected by earth surface, so the whole process repeated continuously and rapidly। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, कंप्लीट बैंडिंग ऑफ वेव्स हुआ, अर्थ पे आया, फिर अर्थ रिफ्लेक्ट करेगा वापस से वो वेव को, फिर वेव्स जाएगा एटमॉस्फेयर में, फिर कंप्लीट बेंडिंग होगा, सुपर रिफ्रैक्शन होगा, देन इट अगेन कम बैक्स टू दी अर्थ ग्राउंड, फिर अगेन वापस से अर्थ क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा। सो दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी कंटिन्यूस एंड रैपिडली। सो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहेगा, रैपिडली होता रहेगा। तो ऐसा प्रोसेस जो कंटिन्यूसली हो रहा है, रैपिडली हो रहा है, तो इसमें ऐसा नजर आ रहा है हम लोग को, वेव्स आर ट्रैप इन द फॉर्म ऑफ डक्ट्स। डक्ट के फॉर्म में ये वेव्स क्या हो रहा है, ट्रैप हो रहा है। तो दैट्स वाई इसका नाम जो है, नेम जो दिया हुआ है, इट इज गिवन डक्ट प्रोपोगेशन। Thus the waves are trapped in the form of duct, hence the name is given duct propagation। तो डक्ट प्रोपोगेशन में जो प्रिंसिपल जो बिहाइंड जो यूज हुआ है, तो वो क्या प्रिंसिपल बिहाइंड में यूज हुआ है, द चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एज वी गो above the height from the ground, the refractive index of the atmosphere is increases, or this refractive index will cause the complete bending of your waves, and hence your waves will refract it completely, bend it completely, and will return to the earth, and this earth will again reflect the wave। और ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली रैपिडली चलता रहेगा। ऐसा कंप्लीटली होने की वजह से क्या होगा, आपका डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर हो रहा है। डक्ट प्रोपोगेशन का जो वेव्स है वो डिस्टेंस भी क्या कर रहा है, ज़्यादा कवर कर रहा है, ज़्यादा कवर हो रहा है। और ये फिनोमिनन जो है, इस फिनोमिनन को बोलते हैं डक्ट प्रोपोगेशन। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन पॉइंट भी यहाँ पे दिया हुआ था। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ वेव प्रोपोगेशन चैप्टर, जो एक लास्ट टॉपिक अपना बचा हुआ है वेव प्रोपोगेशन चैप्टर में, जो एक लास्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, द लास्ट टॉपिक ऑफ वेव propagation is tropospheric scatter propagation।
One more different type of propagation it is mentioned to you in this syllabus also, tropospheric scatter propagation. तो अब ये नाम से क्या मालूम पड़ रहा है, ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन, यानी ट्रोपोस्फियर जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर के ऊपर, ट्रोपोस्फियर जिसको बोलते हैं, तो ट्रोपोस्फियर में कुछ ऐसे वॉल्यूम होंगे, डस्ट पार्टिकल्स ऐसे प्रेजेंट होंगे जिसकी वजह से वेव टकरा के क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। स्कैटर का मतलब क्या होता है, वेव्स का फैलना, कोई चीज़ का फैलना। तो कोई चीज़ का फैलना उसको क्या बोलते हैं, स्कैटर। तो अब यहाँ पे प्रोपोगेशन होने के लिए, वेव का प्रोपोगेशन होने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, यहाँ पे वेव का प्रोपोगेशन होने के लिए कॉन्सेप्ट ये यूज हुआ है, ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर मीन्स व्हाट, द स्कैटर वॉल्यूम विच इज प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फियर विल कॉज आवर प्रोपोगेशन, विल कॉज वेव प्रोपोगेशन। तो कैसा प्रोपोगेशन होगा, जरा हम लोग ये डायग्राम में देख लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो एज यू सी इन दिस डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपके सामने ये अर्थ है, अर्थ सरफेस है, और इन दी ट्रोपोस्फियर देयर इज सम वॉल्यूम, यहाँ पे एक वॉल्यूम बना के दिखाया हुआ है जिसको क्या कहा गया, स्कैटर वॉल्यूम। देखिए एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे अलग अलग डस्ट पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स है, वो जो ऑब्जेक्ट्स है, वो हम लोग का क्या कॉज बनेंगे, स्कैटर वॉल्यूम का कॉज बनेंगे। यानी जहाँ से वेव फैलेगी, स्कैटर होगी, टकराएगी तो फैलेगी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो दैट्स वाई इसको क्या कहा गया है, स्कैटर वॉल्यूम कहा गया है। अब देखो जो वेव्स आपकी, अभी यहाँ पे आपके लिए, इसके लिए क्या लगेगा आपको, इसके लिए आपको हाईली डायरेक्शनल एंटीनास लगेंगे। हाईली डायरेक्शनल एंटीना का मतलब ये होता है, डायरेक्शनल एंटीना का मतलब ये होता है ऐसे एंटीना जिसका डायरेक्शन सिर्फ फोकस ये वॉल्यूम पे होना चाहिए, डस्ट पार्टिकल पे होना चाहिए। यानी वेव्स यहाँ से इमिट हुई तो सीधा कहाँ पे पहुंचना चाहिए, वो वेव सीधा इस स्कैटर वॉल्यूम में पहुंचना चाहिए। तो उसको बोलते हैं डायरेक्शनल एंटीना, जिनका डायरेक्शन फिक्स होता है, फोकस होता है। दे नो कि कहाँ पे उनको अपनी वेव को इमिट करना है, पहुंचाना है, ट्रांसमिट करना है। तो ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन होने के लिए आपको हाईली डायरेक्शनल ट्रांसमिटिंग एंटेना एज वेल एज रिसीविंग एंटेना लगेगा, जिसका फोकस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। डायरेक्शनल एंटेना का मतलब ये होता है कि दे आर फोकसिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली, जिनका फोकस सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है, पूरे एरिया में नहीं होता है। तो हाईली डायरेक्शनल एंटीना लगेगा। तो वो डायरेक्शनल एंटीना क्या करेगा, सबसे पहले डायरेक्शनल ट्रांसमिटिंग एंटीना जो है वो वेव्स को डायरेक्टली किधर पे पहले भेजेगा, किधर पे पहुंचाएगा, इस स्कैटर वॉल्यूम पे पहुंचाएगा। अब जैसे ही तुम्हारी वेव्स इस स्कैटर वॉल्यूम पे पहुंचेगी तो वेव्स जो है वो टकराएगी, और टकरा के क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। स्कैटर का मतलब यही होता है, फैलना। द वेव्स विल बी स्कैटर्ड इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में वो स्कैटर होके मतलब क्या हो जाएगी, आपकी वेव फैल जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन में क्या होना चाहिए, ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन में दूसरी एंड की तरफ, जो रिसीविंग एंड की तरफ, वो भी एंटेना कौन सा होना चाहिए, हाईली डायरेक्शनल होना चाहिए, जिसका भी फोकस कहाँ पे होगा, इस स्कैटर वॉल्यूम की तरफ होगा। यानी जो वेव्स यहाँ से इमिट हुई, हाईली डायरेक्शनल ट्रांसमिटिंग एंटेना से इमिट हुई, स्कैटर वॉल्यूम पे पहुंची, स्कैटर वॉल्यूम पे पहुंच के वेव्स क्या हुई, स्कैटर हुई। तो अब यहाँ पे रिसीविंग डायरेक्शनल एंटीना का काम क्या है, जो वेव्स इस डायरेक्शन में स्कैटर हुई उस डायरेक्शन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, उसका फोकस इधर पे रहेगा। तो वो कुछ वेव्स जो है वो यहाँ से ट्रांसमिट होके, स्कैटर होके, जो अगर हाईली डायरेक्शनल रिसीविंग एंटीना तक पहुंच रही है तो वो हमारा सक्सेसफुल किसके लिए होगा, ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन के लिए। तो ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन सक्सेसफुल कब होगा, जब यहाँ से हाईली डायरेक्शनल एंटीना से आपकी वेव्स इमिट हुई, स्कैटर वॉल्यूम पे टकराई, और टकरा के एग्जैक्टली कहाँ पे पहुंच रही है, कहाँ पे पहुंच रही है, हाईली डायरेक्शनल रिसीविंग एंटीना पे। तो इन दिस वे ये वेव क्या हुई, प्रोपोगेट हुई, आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक पहुंचाई। लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं होगा, कुछ वेव सब जो है अलग अलग डायरेक्शन में रहेगी। अब अलग अलग डायरेक्शन में कैसा रहेगी, कुछ वेव जो है ना वो स्कैटर्ड ही नहीं होगी, कुछ वेव जो है ना वो टकरा के, स्कैटर वॉल्यूम से टकरा के वो इधर पे आएगी नहीं, उसको कुछ असर ही नहीं होगा। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन में देखो ऊपर की तरफ वेव्स जा रही है, तो जो ऊपर की तरफ वेव जा रही है उसको क्या लिखा हुआ है, नो स्कैटरिंग, यानी उसमें स्कैटरिंग हुआ ही नहीं, उसको स्कैटरिंग का कुछ असर ही नहीं हुआ, वो टकरा के उसमें कुछ असर ही नहीं हुआ। तो कुछ वेव जो है, कुछ रेज जो है वो डायरेक्टली ट्रेवल करेगी, स्कैटर वॉल्यूम को भी पार करके स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जाएगी, ठीक है। कुछ वेव्स जो है वो टकराएंगी तो
लेकिन उनका डायरेक्शन कहाँ पे होना चाहिए था, रिसीव एंटीना की तरफ होना चाहिए था, बजाय रिसीव एंटीना की डायरेक्शन की तरफ वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, जैसे कि यहाँ पे डॉटेड लाइन में आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है। सो इन द डॉटेड लाइन लेफ्ट साइड में अगर कुछ वेव्स स्कैटर होके वो डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट ऑफ रिसीविंग एंटीना की डायरेक्शन के अपोजिट में जा रही है, तो उस स्कैटरिंग को हम लोग बोलेंगे लॉस्ट स्कैटरिंग, यानी वो हमारा कुछ काम का नहीं है, लॉस्ट स्कैटरिंग। एक तो हो गया डॉटेड लाइन में आपको इधर पे दिखा है नो स्कैटरिंग, मतलब उसमें कुछ असर ही नहीं हुआ, सीधा स्कैटर वॉल्यूम को भी पार करके ऊपर जा रही है। और कुछ वेव्स ऐसी भी हो सकती है जो क्या होगी, इन द अपोजिट ऑफ रिसीविंग एंटेना के डायरेक्शन में फैलेगी, तो उस स्कैटरिंग को बोलेंगे लॉस स्कैटर। और जो वेव्स आपकी यहाँ से स्कैटर वॉल्यूम से टकरा के रिसीविंग एंटेना तक पहुँच रही है, तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड स्कैटर। फॉरवर्ड स्कैटर मतलब इसलिए क्योंकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, रिसीविंग एंटेना के डायरेक्शन में आ रही है, तो उस पर्टिकुलर स्कैटर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या ये तो बोलेंगे फॉरवर्ड स्कैटर। ठीक है। और फिर इसी के साथ में कुछ जो है, कुछ वेव्स जो है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके आएगी तो आज सरफेस पे आएगी, लेकिन रिसीविंग एंटीना की तरफ नहीं आएगी, रिसीविंग एंटीना की तरफ नहीं आएगी। तो उसका इधर पे यहाँ पे मीनिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है रॉक। वो करेक्ट कर लेना आप लोग, वो रॉक स्कैटर नहीं है, वो बैक स्कैटर है। जो वेव्स फॉरवर्ड, जो वेव्स रिसीविंग एंटेना तक पहुंच रही है उनको फॉरवर्ड स्कैटर बोलते हैं, और जो वेव्स रिसीविंग एंटेना तक नहीं पहुंच रही है तो उसको बैक स्कैटर कहते हैं। तो आप लोग करेक्ट कर लेना, इट इज़ नॉट रॉक स्कैटर, इट इज़ बैक स्कैटर। ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, जो वेव्स यहाँ से ट्रांसमिट एंटीना सेम हो रही है, लेकिन रिसीव एंटीना की तरफ जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसको लॉन्गेस्ट पाथ बोलेंगे। और जो वेव्स जो है वो कम डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ बोलेंगे। यहाँ पे इस डायग्राम में ये जो है, ये वेव्स को इधर पे इसने शॉर्टेस्ट पाथ लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज़ लॉन्गेस्ट पाथ। और जो शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रही है वो शॉर्टेस्ट पाथ है। तो कुछ वेव्स जो है वो लॉन्गेस्ट पाथ कवर कर रही है, कुछ वेव जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रही है। तो आई थिंक आप लोग को ये स्कैटर, टोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन का भी मीनिंग क्लियर हुआ होगा। टोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन में जो प्रिंसिपल यूज होता है, इन द टोपोस्फियर सम डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, और वो डस्ट पार्टिकल किसके जैसा काम करते हैं, स्कैटर वॉल्यूम के जैसा काम करते हैं, जहाँ से अपनी वेव जो इमिट होती है तो उस वॉल्यूम से टकरा के स्कैटर होती है इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। तो जो वेव्स हमारी रिसीविंग एंटीना की तरफ पहुंच रही है वही काम की होती है, एंड दैट स्कैटर इज नोन एज फॉरवर्ड स्कैटर। और जो सब अदर्स है जिसमें कुछ स्कैटरिंग का असर ही नहीं होता है स्कैटर वॉल्यूम का, वो नो स्कैटर। और जो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है उसको लेस लॉस्ट स्कैटर बोलते हैं। और इसी तरीके से जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रहा है रिसीव एंटीना की तरफ पहुंचने में उसको शॉर्टेस्ट पाथ वाला वेव बोलते हैं, और जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है उसको लॉन्गेस्ट पाथ बोलते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर इसके बाद इसी में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मीनिंग दिया हुआ है। इट इज़ यूज फॉर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, इट यूजेज सम प्रॉपर्टीज ऑफ द टोपोस्फियर विच इज़ अबाउट 15 किलोमीटर अबव द अर्थ। तो अर्थ के 15 किलोमीटर डिस्टेंस से ये टोपोस्फियर में स्कैटर वॉल्यूम प्रेजेंट रहते हैं, स्कैटर वॉल्यूम प्रेजेंट रहते हैं। तो द टू डायरेक्शनल एंटीनास आर पॉइंटेड टुवर्ड द स्कैटर वॉल्यूम विच इज अबव द हॉरिजॉन। तो दो हाईली डायरेक्शनल एंटीनास आर पॉइंट किए होते हैं स्कैटर वॉल्यूम की तरफ, एक ट्रांसमिटिंग एंटीना और एक दूसरा कौन सा, रिसीविंग एंटीना। For scattering of waves, the dust particles which are present in troposphere are used, so the waves get scattered in different direction। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्कैटरिंग ऑफ वेव्स के लिए डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ट्रोपोस्फियर में, और वो उस ट्रोपोस्फियर में डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होने की वजह से वेव्स स्कैटर होती है डिफरेंट डायरेक्शन। So what is the advantages? It is a reliable method over the horizon communication. It is not affected by phenomenon of skywave propagation. तो skywave propagation का कुछ इसमें इफेक्ट नहीं होता है, सिंपली जस्ट डायरेक्शनल एंटेना पॉइंट करना पड़ता है स्कैटर वॉल्यूम पे, और वहाँ से स्कैटर होके वो रिसीविंग एंटेना की तरफ रिसीव होता है। एप्लीकेशन यूजिंग लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन एंड अदर कम्युनिकेशन लिंक। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, एंड अदर कम्युनिकेशन लिंक के लिए यूज़ किया जा सकता है इसको। सो दिस इज़ द वे, जो डिफरेंट टाइप्स के आपके वे प्रोपोगेशन थे वो हम लोगों ने किए थे। इसी का एक क्वेश्चन था यहाँ पे जो सैम्पल पेपर में भी दिया होता है, एक डायग्राम बनाया हुआ था और पूछा जा रहा था आप लोग से कि कौन कौन सा ये टाइप का वेव प्रोपोगेशन कवर करता है, कौन कौन सा ये वेव प्रोपोगेशन वो आपको बताना था। एक डायग्राम दिया हुआ था
उस डायग्राम में डिफरेंट टाइप्स के वेव प्रोपोगेशन का डायग्राम बना हुआ था और ए बी सी करके दिया हुआ था और क्वेश्चन पूछा था ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, कौन सा प्रोपोगेशन वो आपको बताना था। तो सैम्पल पेपर का क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है इन अ सैम्पल क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 का डी। तो जहाँ पे कुछ डायग्राम दिया हुआ था उस डायग्राम में पूछा गया था आप लोग से कि मेंशन विच टाइप ऑफ प्रोपोगेशन इज ए बी एंड सी। तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखाया था। चाहो तो मैं आपको इधर पे वो हाईलाइट करके दिखा सकता हूँ, बता भी सकता हूँ। उसके लिए मुझे सैम्पल क्वेश्चन पेपर ओपन करना पड़ेगा। सैम्पल क्वेश्चन पेपर ओपन करूँगा तो वहाँ पे आपको दिखाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का डी। ओके, दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। ओके, आर यू एबल टू सी दिस? तो दिस इज द सैम्पल क्वेश्चन पेपर जहाँ पे आइडेंटिफाई वेव प्रोपोगेशन मोड फॉर ए बी सी शोन इन द फिगर एंड राइट वन एप्लीकेशन ऑफ ईच मोड। तो ये क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ था जिसमें से ये क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई वेव प्रोपोगेशन मोड फॉर ए बी एंड सी शोन इन द फिगर 1। तो ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है इस डायग्राम में ए बी और सी करके इधर पे आपको हाईलाइट किया हुआ है और आइडेंटिफाई करने बोला है कि वो कौन सा प्रोपोगेशन है और उन प्रोपोगेशन का एक एक एप्लीकेशन लिखना है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है इधर पे इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आप लोग को, ये आयनोस्फीयर का लेयर है। सो आयनोस्फीयर का लेयर है और ये क्या आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको जो दिख रहा है ये पर्टिकुलर चीज़ जो आपको दिख रही है, दिस इज हाईली डायरेक्शनल एंटीना। इस डायरेक्शनल एंटीना ने हम लोग ने कहाँ पे इसको पहुँचा है, इधर पे पहुँचा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट पे, और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट होकर किधर पे पहुँच रहा है, यहाँ पे पहुँच रहा है। तो दिस इज इंडिकेटिंग विच टाइप ऑफ प्रोपोगेशन, कौन सा टाइप का प्रोपोगेशन ये इंडिकेट कर रहा है, ए वाला दिस कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट से यहाँ से वेव्स आपकी इमिट हुई, ये इमिट होके ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे इस रिसीविंग एंटेना की तरफ पहुँची है। तो दिस इज ट्रांसमिटिंग एंटेना, रिसीविंग एंटेना। तो ये जो टाइप का वेव प्रोपोगेशन है, कौन सा वेव प्रोपोगेशन हो सकता है, कैन एनीबॉडी टेल मी, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई? मैंने इसका आंसर दिखाया भी था आप लोग को। तो ये वाला कौन सा डायग्राम हो सकता है, यहाँ से वेव इमिट हुई, कम्युनिकेशन सैटेलाइट में पहुँची, फिर वहाँ से टकरा के आपकी इधर पे आ रही है। तो कौन सा हो सकता है ये, कैन एनीबॉडी, एनी गेसेस? टोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन। तो कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है वो क्या कर रहा है, आपकी वेव्स को यहाँ पे वापस से इधर पे रिसीव एंटेना की तरफ पहुँचा रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन। सो A1 जो है वो आपका टोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन है। फॉर दी बी वन के लिए क्या दिया हुआ है, ये आयनोस्फीयर का लेयर दिया हुआ है और ये आयनोस्फीयर के लेयर से यहाँ से वेव आपकी क्या ट्रांसमिटिंग एंटेना से हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर पहुँच रही है। सो द वेव विच इज टेकिंग द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द आयनोस्फीयर लेयर, उस वेव को कौन सा वेव प्रोपोगेशन बोलते हैं, जो वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, कौन सा वेव प्रोपोगेशन हो सकता है ये, आयनोस्फीयर लेयर से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, विच टाइप ऑफ वेव प्रोपोगेशन? जो वेव आयनोस्फीयर लेयर से रिफ्लेक्ट होके जाती है उसको कौन सा वेव प्रोपोगेशन बोलते हैं, स्काई वेव प्रोपोगेशन। तो स्काई वेव प्रोपोगेशन होता है जो आयनोस्फीयर लेयर्स का रिफ्लेक्शन होके जाता है। और थर्ड वन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ट्रांसमिटिंग एंटेना टू रिसीव एंटेना, डायरेक्टली रेस ट्रैवल हो रही है फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटेना टू रिसीव एंटेना। तो ये जो डायरेक्ट ट्रांसमिटिंग एंटेना टू रिसीव एंटेना में ट्रैवल हो रही है, LOS पाथ फॉलो करती है, तो उस वेव को बोलते हैं स्पेस वेव प्रोपोगेशन। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को हाईलाइट करना था, आइडेंटिफाई करना था ए बी सी। तो A1 जो है वो ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन, B1 इज जो वेव टेकिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम द आयनोस्फीयर लेयर, स्काई वेव प्रोपोगेशन। एंड द थर्ड वन जो वेव डायरेक्टली ट्रेवल हो रही है ट्रांसमिट एंटेना टू रिसीव एंटेना, इट इज नोन एज स्पेस वेव प्रोपोगेशन। तो ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन जो है वो आप लोग को दिया हुआ था, जिसमें का हम लोग ने आंसर अपनी नोट्स में भी हम लोग ने क्लियर किए थे। तो मैंने यहाँ पे वही चीज़ को हाईलाइट किया था, द A1 इज ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन, B1 इज स्काई वेव एंड द C1 इज स्पेस वेव प्रोपोगेशन। तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर भी समझ में आया होगा। सो दैट इज द एंड ऑफ वेव प्रोपोगेशन चैप्टर। अभी हम लोग का एक ही चैप्टर बचता है, दैट इज एंटेनास।
तो हम लोग ने पीईसी सब्जेक्ट में 4 चैप्टर्स तक इस टॉपिक से यहाँ पे ख़त्म किए. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एंटेना चैप्टर. ठीक है, ओके. तो आपको कुछ डाउट रहेगा, कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैसेज करना, और या तो ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस को ज़रूर देखना आप लोग. टिल द टाइम, प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे एट होम. थैंक यू very much.